हेलो 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 एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो Yes, sir. So last class we have seen the gram eye diagram last time we have seen. So the last part of your digital second unit, last part of the second unit we will study today, and this is gram Smith organization process, orthogonalization, sorry, gram Smith orthogonalization scheme. So last after the second unit has the last part has. So this is the second unit of your syllabus. So digital communication basic, introduction of digital communication system in the power spectrum density of line coding schemes. We have discussed pulse shaping, scrambling, eye diagram we have seen earlier. So today is the Gram Smith orthogonalization scheme. तो ये जो आपका है स्कीम, इसमें डिजिटल कम्युनिकेशन में विशेष इसका मतलब है नहीं, but don't know why this is given here. क्योंकि डिजिटल कम्युनिकेशन में विशेष इसका मतलब है नहीं, but given है, this is part of mathematics. So we will study if given syllabus, so we will study some basic concepts of this one also. So orthogonalization, Gram-Smith orthogonalization scheme. So there are 2 points here. First one is orthogonal. What is orthogonal? And another term used here is orthonormal. 2 terms will be used here: orthogonal and orthonormal. So orthogonal का मतलब क्या है? Dot product of the 2 vector is 0. If the dot product of 2 vector is 0 हो जाए तो हम क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनल. मतलब डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या? A and B are if 2 vectors, so then we can say that AB cos theta. AB cos theta is the dot product. A dot B is AB cos theta. Theta is the angle between them. So if the dot product is 0, that means A dot B is 0. That means cos theta is 0. So cos theta 0, cos 90 क्या होता है? 0 होता है. तो इसलिए theta is 90 degree. So orthogonal means what? जो दोनों vectors होंगे वो perpendicular to each other. If 2 vectors are perpendicular to each other, then only we can say that the 2 vectors are orthogonal. ये एक पॉइंट था आपका. तो orthogonal में ध्यान रखना क्या है कि this is the dot product of the 2 vectors. And the dot product of the 2 vector is 0, so we can say that the 2 vectors are perpendicular to each other, and this is orthogonal. And orthonormal is also a point term that will come here. Orthonormal क्या है? एक set of vectors है. This is also a set of vectors. Set of vectors मान लो S कोई वेक्टर है, उसमें S एक सेट है जिसमें ढेर सारे वेक्टर्स हैं. Suppose S is a set having various, इसमें है मान लो S1, S2, S3, suppose. So this is if suppose S is a set of vector. S क्या है? एक set of vector है. तो इसमें S1, S2, S3 क्या है? Vectors हैं. And S is set of various vectors. So S is equal to S1, S2, S3, so on. This is a set of vectors. तो कहता है कि a set of vector S is orthonormal. यदि ये set of vectors जो हैं वो orthonormal होंगे if every vector in S, यदि every vector जो है this one, every vector जो भी है
in S has a magnitude 1 and a set of vectors are mutually orthogonal। ठीक है, मतलब अब कह रहे हैं कि ये S जो है एक सेट ऑफ वेक्टर्स है and if and this is orthonormal, this is orthonormal। कब होगा ऑर्थोनॉर्मल? जब ये सेट ऑफ वेक्टर्स जो गिवन है, सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन हैविंग वैल्यू 1, मैग्नीट्यूड 1 एंड दिस सेट ऑफ वेक्टर्स आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। मतलब यदि S1 और S2 को हम देखें तो दिस S1 और S2 यदि हम देखें तो क्या हो, आपस में ऑर्थोगोनल। दिस S1 S2 आर ऑर्थोनॉर्मल टू ईच अदर, मतलब दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो। S2 S3 आर ऑर्थोनॉर्मल, मतलब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो ऑर्थोनॉर्मल ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल ऑर्थोनॉर्मल, ऑर्थोगोनल क्या हो गया कि टू वेक्टर्स गिवन है एंड टू वेक्टर्स गिवन है एंड इफ दे आर म्यूचुअली if they are perpendicular to each other। ठीक है, two vectors perpendicular to each other, then it is called as orthogonal। and orthonormal क्या है? Orthonormal a set of vectors and F is a set of vectors is orthonormal। ये orthonormal होगा कब? जब if every vector in S, every vector जो यहाँ given है S1 S2 S3, every vector in S has a magnitude 1, इसकी magnitude 1 हो और ये आपस में परपेंडिकुलर हो, मतलब आपस में ऑर्थोगोनल हो, then only we can say that this is the orthonormal process। और ऑर्थोनॉर्मल ये जो फैक्टर्स हैं, सेट ऑफ फैक्टर्स हैं, इट इज कॉल्ड एज ऑर्थोनॉर्मल। सो ये जो ग्राम स्मिथ प्रोसेस है, ग्राम स्मिथ स्कीम, वो उसको यूज करते हैं यूज टू चेक द लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ द फैक्टर। दिस इज यूज्ड, ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस इज यूज्ड टू check the linear independence of the vector। linear independence of the vector को इसको चेक करने के लिए यूज करते हैं ग्राम स्मिथ प्रोसेस। सो इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट, अब इसका यूज किस लिए करते हैं? यूज टू कन्वर्ट ऑर्थोगोनल बेसिस, ऑर्थोगोनल बेसिस में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। नॉन ऑर्थोगोनल कोई बेसिस है, बेसिस क्या है? नॉन ऑर्थोगोनल बेसिस मतलब सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट फैक्टर हो, सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट फैक्टर हो तो उसको नॉन ऑर्थोगोनल बेसिस कह देते हैं। तो नॉन ऑर्थोगोनल बेसिस को यदि कन्वर्ट करने के लिए यहाँ ये यूज करेगा नॉन ऑर्थोगोनल, नॉन ऑर्थोगोनल है ना, कोई बेसिस नॉन ऑर्थोगोनल बेसिस है तो नॉन ऑर्थोगोनल बेसिस टू दिस इज नॉन ऑर्थोगोनल बेसिस। तो टू कन्वर्ट नॉन ऑर्थोगोनल बेसिस इनटू ऑर्थोगोनल बेसिस, नॉन ऑर्थोगोनल बेसिस का क्या मतलब होगा? ए सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर और मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड एज नॉन ऑर्थोगोनल बेसिस। So to convert non-orthogonal basis into orthogonal basis, non-orthogonal का मतलब हो गया linearly independent vector होगी और orthonormal का मतलब set of orthogonal और orthogonal bi और tridimensional matrix। तो orthonormal जो हिल्बर्ट बेसिस है, हिल्बर्ट ही orthonormal बेसिस कहलाता है। Sometimes you can see that in place of orthonormal Hilbert basis is written। So orthonormal we have understood that orthonormal क्या है? This is or if the vector S, set of vector है S is called orthonormal when the magnitude of each vector is 1, magnitude of each vector is 1 and they are mutually orthogonal, मतलब they are mutually perpendicular। तो इसको हम कहेंगे orthonormal। ठीक है, तो इसको अब देखो, अब यहाँ पे
इसके लिए अब आपको हम एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक ऑर्थो ग्राम स्मिथ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्थोगोनलाइजेशन स्कीम के लिए आपको एक वीडियो हम दिखाएंगे। ओके, हाय एवरीवन। आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे, साउंड आ रही है बच्चे? हेलो एक थ्योरम जिसका नाम है ग्राम हेलो स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। हेलो ओके, लेकिन नाम में ही साउंड है इज ऑडिबल? ऑर्थोगोनलाइजेशन। साउंड आ रही है आपको वीडियो की? यस सर। ठीक है, तो ये वीडियो है बच्चे, एक बार अच्छे से देखिए फिर। ऑर्थोगोनलाइजेशन यानी क्या कि हमें कुछ सेट ऑफ वेक्टर्स दिए गए हों, तो उन वेक्टर्स से हम कैसे एक नए वेक्टर्स बना सके जो आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। है ना, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ऑर्थोगोनल नॉन ऑर्थोगोनल बेसिस जो वेक्टर्स होंगे, सेट ऑफ वेक्टर्स, वहां से हमें ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बनाने की बात करें। ओके, सो इस ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस का यूज करेंगे हम इस थ्योरम में। सो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? Every finite dimensional inner product space has orthonormal basis. ओके, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि हर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के पास एक बेसिस एग्जिस्ट करता है। ये थ्योरम क्या कहती है कि हर फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस के पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होगा। ओके, इसके पास बेसिस तो पक्का होगा, लेकिन इसकी एक और क्या कहते हैं गारंटी देता है ये कि इसके पास जो है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस भी पक्का होगा। ओके, सो अगर मैं एक नॉर्मल बेसिस की बात करूं, मान लीजिए दिस इज ओनली कन्वर्ट इनटू द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ फैक्टर्स जो होंगे उसमें कन्वर्ट करेंगे। नॉन ऑर्थोगोनल बेसिस से ऑर्थोगोनल बेसिस में कन्वर्ट करेंगे। ये जो आपका ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस है, U1, U2 अप टू सो ऑन UN, ये कोई बेसिस है। ओके, लेकिन इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती कि ये ऑर्थोनॉर्मल है या नहीं है। ओके, ऑर्थोनॉर्मल तो बाद की बात है, पहले है ना। ऑर्थोनॉर्मल बच्चे समझ गए, मैंने बताया अभी। ऑर्थोनॉर्मल क्या होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वन इज 1 एंड बोथ एंड एवरी फैक्टर, जो इसमें जितने भी वेक्टर्स गिवन हैं, तो सेट ऑफ वेक्टर्स होगा आपस में म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा ईच अदर। चेक करते हैं कि ये ऑर्थोगोनल होता है या नहीं होता। ओके, तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती है कि ये जो U1 है ये हर किसी पे परपेंडिकुलर है, उसी तरह से ये जो U2 है ये हर किसी पे परपेंडिकुलर है। ओके, सो बेसिस का सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी होती है। नंबर 1 कि वो स्पैन करता है उस इनर प्रोडक्ट स्पेस को या फिर उस वेक्टर स्पेस को। नंबर 2 वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम एक नॉर्मल बेसिस को एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में कन्वर्ट कर सकते हैं? सो बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, वो कैसे? सो सबसे पहले हम करते हैं क्या कि ये जो बेसिस है इसको कन्वर्ट करते हैं एक ऑर्थोगोनल बेसिस में। ऑर्थोगोनल बेसिस में, सो ऑर्थोगोनल बेसिस में क्या होगा, फिर से कुछ n वेक्टर्स होंगे V1, V2 अप टू सो ऑन Vn, जो इन्हीं से बने होंगे। ओके, ये जो V1, V2, Vn होंगे, ये नंबर 1 ये इस इनर प्रोडक्ट स्पेस को क्या करते होंगे, स्पैन। नंबर 2 ये ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल होंगे क्या, ये आपस पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। और हमें ये चीज़ तो पता है कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो ये क्या करेगा, एक बेसिस बनाएगा। कैसा? एक ऑर्थोगोनल बेसिस बनाएगा। सो ऑर्थोगोनल बेसिस को ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में कन्वर्ट करना ईजी है। आप क्या करेंगे, इन वेक्टर्स को नॉर्मलाइज करेंगे। वेक्टर्स को नॉर्मलाइज करना यानी क्या कि V1 को जो है उसके नॉर्म से डिवाइड करेंगे, V2 को उसके नॉर्म से डिवाइड करेंगे, तो ये सारे वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, एक यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि आपस में परपेंडिकुलर भी होंगे। सो ये क्या बना देंगे, एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बना देंगे। ओके, सो यहाँ से यहाँ का पार्ट ईजी है, लेकिन यहाँ से यहाँ का पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके,
बेसिस को ऑर्थोगोनल बेसिस में कन्वर्ट करना। सो वही हम ये जो बेसिस बच्चे बता रहे हैं, बेसिस जो है ये क्या है, कोई भी रैंडम, दिस इज u1 to un इज रैंडम, एनी रैंडम नॉन ऑर्थोगोनल बेसिस है। ये कोई भी सेट ऑफ वेक्टर चाहिए, हमें नहीं पता कि इसमें क्या है, ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है नहीं है, आई डोंट नो, ठीक है। सो इफ वी कन्वर्ट फ्रॉम दिस नॉन ऑर्थोगोनल बेसिस, ये क्या नॉन ऑर्थोगोनल बेसिस है, this is non-orthogonal basis, and if we convert this non-orthogonal basis into orthogonal basis, then this is the Gram-Schmidt orthogonalization process, है ना। तो using the Gram-Schmidt orthogonalization process we can convert it the non-orthogonal basis into orthogonal basis, और ये ऑर्थोनॉर्मल और ऑर्थोगोनल प्रोसेस है, ये आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं by dividing the some unit vector. So orthogonal, orthonormal, they can be switched to each other using some mathematical expression. ओके। सो पहले बात करती हूँ मैं एक वन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की। ओके, सपोज कोई वेक्टर स्पेस है V1 जिसके बेसिस के पास सिर्फ एक ही वेक्टर है। ओके, यानी कि आप ये कह सकते हो कि स्पैन बाय जस्ट ओनली वन वेक्टर, मान लीजिए U1 है। तो क्या ये बेसिस ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बना पाएगा? देखिए U1, अगर मैं रियल की बात करूं, ओके, सो रियल के केस में वन डायमेंशन का क्या मतलब होता है, सपोज ये U1 को मैं कोई वेक्टर मानूं, मान लीजिए ये U1 है। ओके, सो ये कैसा वेक्टर स्पेस बनाएगा? सारे स्केलर मल्टीपल ऑफ U1, यानी कि एक लाइन को स्पैन करेगा, ये पूरा इसका वेक्टर स्पेस होगा। ओके, ये जो पूरी लाइन है, ये U1 इस पूरी लाइन को क्या करती है, स्पैन करती है। ओके, सो क्या मैं इस U1 को एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में कन्वर्ट कर सकती हूँ? देखिए U1 जो है ऑर्थोगोनल है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ऑर्थोगोनल बेसिस का क्या मतलब होता है कि वो हर वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, और U1 के पास सिर्फ एक ही वेक्टर है, वो खुद, तो बाकी के वेक्टर्स हैं ही नहीं जिन पे हम परपेंडिकुलर की बात करें। तो इसका क्या मतलब है, ये ऑर्थोगोनल बेसिस बना सकता है। ओके, सो अगर मैं U1 को ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में कन्वर्ट करूँ तो कैसे करूँगी? इसको जो है इसके नॉर्म से डिवाइड करूँगी, यानी कि U1 को डिवाइड करूँगी उसकी लेंथ से। ओके, सो मान लेते हैं यहाँ से कोई मुझे यूनिट वेक्टर मिलता है, जैसे हम नॉर्मली फिजिक्स के अंदर इसको डिनोट करते थे इस तरह से। सो फिलहाल मैं आपको रियल के केस में बात कर रही हूँ। ओके, सो ये एक यूनिट वेक्टर बना देगा, और ये क्या हो जाएगा, ये जो U है, नंबर 1 ये ऑर्थोगोनल है। ओके, क्योंकि ये हर वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, दूसरा कोई वेक्टर है ही नहीं इसके पास। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या किया, जो ऑर्थोगोनल था बेसिस, ऑर्थोगोनल बेसिस इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, नहीं, तो ऑर्थोगोनल बेसिस जो थे, आपको ऑर्थोगोनल बेसिस दिया हुआ था यहाँ पे V1 जो है, इसमें U1 यदि है, दिस V1 इज इक्वल टू दिस वन, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे इसके नॉर्म से डिवाइड कर दिया, तो इसकी लेंथ से यदि हम डिवाइड कर दे रहे हैं फैक्टर में, तो ये क्या है, ये जो आपका रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट आपको क्या कहलाएगा, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। So this is just conversion of orthogonal basis into orthonormal basis by just dividing its norms. That means by its length. So obviously एक ऑर्थोगोनल बेसिस तो है, प्लस इसकी लेंथ कितनी है, 1 है। देखिए U1 बाय U1 का नॉर्म लूँ मैं अगर, तो ये कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि दिस इज व्हाट, U1 का नॉर्म डिवाइड बाय U1 का नॉर्म विच इज 1। ओके, सो इसकी लेंथ भी 1 है, ये ऑर्थोगोनल भी है, सो ये एक ऑर्थोनॉर्मल सेट बना रहा है, और ये जो है इसको स्पैन भी करता है, इस वेक्टर स्पेस को स्पैन करता है। क्यों करता है? देखिए आप इस वेक्टर से U1 प्रोड्यूस कर रहे हो, वो कैसे? देखिए U1 कैन बी रिटन एज नॉर्म ऑफ U1 इंटू U वेक्टर, ओके, यूनिट वेक्टर U। सो आप जो है इस वेक्टर से U1 भी स्पैन कर रहे हो। ओके, सो ऑब्वियसली जिन वेक्टर्स को U1 स्पैन कर रहा है, इस U1 को स्पैन करने वाला वेक्टर भी उन वेक्टर्स को स्पैन कर सकता है। ओके, यानी क्या कि V1 also कैन बी स्पैन्ड बाय जो हमने वेक्टर बनाया है नया, ये यूनिट वेक्टर। ओके, सो ये अब कैसा बेसिस बना, एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बना।
ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ओके, कैसे बनाया हमने उसको, सिर्फ उसकी लेंथ से डिवाइड किया क्योंकि एक ही वेक्टर था वहाँ पे, सो हमें ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी उसको ऑर्थोगोनल में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, सो बेसिकली हमने किया क्या, इस u1 को कन्वर्ट किया एक यूनिट वेक्टर में जो कि उसी डायरेक्शन में है और उसको हमने इस तरह से डिनोट किया। ओके, सो ये जो है ये भी, ये जो पूरी वेक्टर स्पेस है, ये जो u है ये इस पूरी वेक्टर स्पेस को फिर से स्पैन करती है। ओके, सो इसीलिए ये क्या है, एक बेसिस है, लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, ये एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है और ये कोई नॉर्मल बेसिस था। ओके, इसकी लेंथ 1 है, इसकी लेंथ 1 नहीं है। ओके, सो ये था फर्स्ट डायमेंशन में। अगर इसी तरह हम अगर सेकेंड डायमेंशन की बात करें, मान लीजिए कोई v2 है, v2 है यानी क्या, ये है वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 2। ओके, सो स्पैन बाय, मान लेते हैं इसके अंदर, इसके बेसिस के अंदर दो वेक्टर्स हैं u1 और u2। ओके, और अब मुझे इस u1 और u2 को कन्वर्ट करना है, इस बेसिस को कन्वर्ट करना है एक नए ऑर्थोगोनल बेसिस में। ओके, इसको मुझे कन्वर्ट करना है एक ऑर्थोगोनल बेसिस में। ओके, और ऑर्थोगोनल बेसिस को जो है ऑर्थोनॉर्मल में कन्वर्ट करना इजी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको ऑर्थोगोनल बेसिस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यानी कि फिर से हमारे पास बेसिस है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ओके, कहने का क्या मतलब है, इधर दो वेक्टर हैं तो इधर भी दो ही वेक्टर आने चाहिए। सो मान लेते हैं कोई दो नए वेक्टर आ गए v1 और v2। ओके, सो ये जो v1 और v2 है ये भी पूरे v2 को स्पैन करने चाहिए। ओके, और प्लस ये जो v1 और v2 है ये बेसिस बनाना चाहिए और ये आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा, एक ऑर्थोगोनल बेसिस बना देगा। ओके, अब वो कैसे करेंगे, सो मैं क्या करती हूँ, ये जो v1 है ये मैं पहला वेक्टर ही लेती हूँ। ओके, सो v1 इज u1। ओके, मैंने पहला वेक्टर जो है एज इट इज इस सेट से उठा दिया है। सो v1 इज नथिंग बट u1 ओनली। और अब मुझे ढूंढना है v2 मुझे ढूंढना है सच दैट कि ये v2 जो है इस v1 पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ओके, और ये जो v1 और v2 मिलाकर इस v2 को स्पैन करते हो। ओके, अब ये कैसे करूँगी, सो इस चीज़ को समझने के लिए, इस v2 को ढूंढने के लिए फिर से अपने दो डायमेंशन स्पेस में चलते हैं। ओके, यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं यानी कि 2 डायमेंशनल स्पेस में चलते हैं सिर्फ समझने के लिए। ओके, सो मान लीजिए ये u1 वेक्टर है ये वाला और ये u2 वेक्टर है ये वाला, और मुझे इस v2 वेक्टर को ढूंढना है। ओके, सो हमने इस केस में देखिए u1 किसको स्पैन करेगा, पूरी इस लाइन को स्पैन करेगा, सारे u1 के स्केलर मल्टीपल ये पूरी लाइन होगी। ओके, सो u1 तो फिलहाल हमने लिया क्या है, वो लिया है हमने v1। ओके, और मुझे एक v2 लेना है जो इस v1 पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो और इस u2 से जनरेट होता हो। ओके, सो ऑब्वियसली अगर u1 या फिर v1 पे परपेंडिकुलर है सो वो कुछ इस तरह से होगा। ओके, उसके ऊपर होगा, क्योंकि वो u2 से जनरेट हो रहा है तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालती हूँ। ओके, और इसको मैं नाम देती हूँ v2। ओके, मैंने पहले ही इसको नाम दे दिया, लेकिन इसी को मुझे एक नया वेक्टर बनाना है। देखिए v2 क्या है, इस पर परपेंडिकुलर है। ओके, अब देखते हैं इस v2 की वैल्यू क्या आती है। सो मान लीजिए जहाँ पर ये परपेंडिकुलर पड़ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये x है और ये है क्या, ये तो ऑलरेडी u2 था। ओके, सो ये u2 है, ये x है और हमें v2 ढूंढना है। ओके, अब एक चीज़ देखिए, जो ये x है ये किस पर लाई करता है, इस पूरी वेक्टर स्पेस पे या फिर पूरे वेक्टर सब स्पेस पे जो u1 से जनरेट हो रहा है। ओके, यानी कि ये x होगा क्या, इस u1 का कोई स्केलर मल्टीपल ही होगा। ओके, यानी कि ये जो पूरा है x इज इक्वल्स टू सम स्केलर मल्टीपल ऑफ u1। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको कि जो u1 है ये इस लीनियर स्पैन में लाई करता है। सो x इज व्हाट, सम स्केलर मल्टीपल ऑफ u1। सो x इज इक्वल्स टू, मान लीजिए कोई c है स्केलर, सो x इज इक्वल्स टू c इंटू u1। ओके, और मुझे ढूंढना क्या है, मुझे इस v2 को ढूंढना है जिससे मैं एक नया मेंबर मान रही हूँ उस बेसिस का। ओके, सो देखिए इतना हमें पता है कि u2 इज इक्वल्स टू व्हाट, x प्लस v2। ओके, देखिए एरो कहाँ से जा रहे हैं,
यहाँ से लेकर ये एक एरो और ये इधर से, सो u2 इज व्हाट, x प्लस v2. ओके, सो दिस इज just x. So u2 is equals to x plus v2. So what is v2? v2 is equals to x minus u2. So v2 is what, u2 minus x. ओके, u2 माइनस एक्स, और मुझे इस x को ढूंढना है. अब मैं इस x को कैसे ढूंढूं, पहले तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, और इसमें मुझे x सब्सटीट्यूट करना है, तो मुझे v2 की वैल्यू मिल जाएगी. ओके, सो x कैसे ढूंढूं मैं, सी इतना मुझे पता है कि जो v2 है ये इस पूरे लाइन पर या फिर इस पूरे वेक्टर सबस्पेस पे क्या है, परपेंडिकुलर है. सो v2 जो है वो u1 पर भी परपेंडिकुलर है. ओके, अब आप कहोगे कि u1 तो यहाँ पे है और v2 यहाँ पे है, आप इस v2 को उठा के अगर यहाँ पे भी रख लो इस तरह से, तो भी तो ये u1 पे परपेंडिकुलर है. ओके, सो v2 इज परपेंडिकुलर टू u1, v2 इज परपेंडिकुलर टू u1. ओके, सो इसका क्या मतलब हुआ कि इस वेक्टर और इस वेक्टर का इनर प्रोडक्ट, यानी कि v2 का इनर प्रोडक्ट विथ u1 कितना आएगा, 0 आएगा, और v2 हमारा क्या था, u2 माइनस एक्स. ओके, सो v2 वॉज u2 माइनस एक्स कॉमा u1, इन दोनों का इनर प्रोडक्ट कितना आ गया, 0 आ गया. और हम क्या कह रहे थे कि x इज सम स्केलर मल्टीपल ऑफ u1. सो u2 माइनस एक्स की जगह हम उसकी वैल्यू रखते हैं, क्या है, c u1, इसका इनर प्रोडक्ट विथ u1 इज इक्वल्स टू 0. ओके, सो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, अगर मैं इस इनर प्रोडक्ट को सॉल्व करूँ, सो ये आएगा u2 का इनर प्रोडक्ट विथ u1, c को अगर मैं बाहर लूँ, सो u1 का इनर प्रोडक्ट विथ u1 विच इज इक्वल्स टू 0. और यहाँ से मैं c की वैल्यू निकालूँ, सो c की वैल्यू कितनी आएगी, अगर मैं इस पूरे पार्ट को उस साइड ले जाऊँ, सो c इज इक्वल्स टू व्हाट, u2 का इनर प्रोडक्ट विथ u1 डिवाइड बाय u1 का इनर प्रोडक्ट विथ u1. सो हमारी c की वैल्यू क्या निकली, c इज इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ u2 विथ u1 डिवाइड बाय इनर प्रोडक्ट ऑफ u1 विथ u1. ओके, सो c इज व्हाट, इनर प्रोडक्ट ऑफ u2 विथ u1 डिवाइड बाय इनर प्रोडक्ट ऑफ u1 विथ u1, यानी क्या, नॉर्म ऑफ u1 का स्क्वायर. ये हमारा c निकला. और अगर मैं c को यहाँ पे पुट करूँ तो मुझे x की वैल्यू निकलेगी. सो x इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इंटू u1. सो v2 की क्या वैल्यू निकली, v2 इज इक्वल्स टू क्या था ये, u2 माइनस, हेलो 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 हेलो. ओके, सो बच्चे यहाँ पे ये जो फर्स्ट में क्या था कि वन डायमेंशनल के लिए इसने ऑर्थोगोनल में कन्वर्ट किया था, और सेकेंड वन जो है वो 2 डायमेंशनल के लिए यहाँ पे कर रहे हैं कन्वर्ट. तो मेन कंसेप्ट है कि हमें ये समझना है कि भाई ये है क्या, ठीक है. बाकी इतना डिटेल में नहीं जाना है, हमें मैथमेटिक्स में ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं, बट वही है कि आपके टॉपिक बिगिन है तो इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिए. अदरवाइज बस हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस लिए यूज करते हैं. ग्राम ऑर्थोगोनल ग्राम स्मिथ प्रोसेस जो है वो किस लिए यूज करते हैं, ये हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए. और इस पे आएगा भी शॉर्ट नोट्स टाइप का कुछ आ सकता है और सब्जेक्टिव में छोटा, बट है कि एक बार आप गो थ्रू देख लीजिए. क्या, c इंटू, यानी कि इनर प्रोडक्ट ऑफ u2 विथ u1 डिवाइड बाय u1 का नॉर्म का स्क्वायर इंटू u1. ओके, ये हमारा x था और ये v2 था, v2 इज इक्वल्स टू व्हाट, u2 माइनस एक्स. ओके, सो अगर मैं यहाँ पे u1 की जगह v1 लिखूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने u1 को v1 के बराबर ही लिया है. सो v2 इज व्हाट, v2 इज इक्वल्स टू u2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ u2 विथ v1 इंटू v1 डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ v1 का स्क्वायर. ओके, सो ये है हमारा नया v2, नया वेक्टर, और ये क्या है,
ये पूरे u1 पे और या फिर v1 पे क्या है, परपेंडिकुलर है। सो देखिए हमने v2 फाइंड किया है और इन दोनों के स्पैन और v1 और v2 के स्पैन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, u1 और u2 जो है वो v2 को स्पैन कर रहे थे और v1 और v2 भी v2 को स्पैन कर रहे हैं। वो कैसे, देखिए v1 तो u1 के बराबर ही है। ओके, और दूसरी बात जो u2 है, आप u2 को यहाँ से निकाल सकते हो, u2 इज व्हाट, v2 प्लस दिस इंटू v1, यानी कि u2 को आप लिख सकते हो एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 और v2। ओके, सो इनका क्या मतलब हुआ कि आप u1 और u2 को निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ v1 और v2। ओके, सो u1 और u2 का जो स्पैन है उसको भी तो आप इन दोनों वेक्टर से स्पैन कर सकते हो, राइट। सो इसका क्या मतलब हुआ कि v1 और v2 जो है पूरे v2 को स्पैन करते हैं। ओके, सो ये हमने निकाला एक वेक्टर जो क्या है v1 पर परपेंडिकुलर है। ओके, लेकिन हमने अभी तक, मैंने सिर्फ आपको ज्योमेट्रिकली दिखाया है कि ये जो v2 है ये v1 पे परपेंडिकुलर है, लेकिन मैंने आपको जो है न्यूमेरिकली सॉल्व करके अभी तक नहीं बताया है। ओके, सो वो कैसे मुझे पता चलेगा, अगर मैं v2 और v1 का इनर प्रोडक्ट लूँ और वो 0 आ जाए, सो इसका क्या मतलब होगा कि v2 इज परपेंडिकुलर टू v1। ओके, सो ये चीज़ हमें चेक करना है। इनर प्रोडक्ट जो कह रहा है ना, इनर प्रोडक्ट इज जस्ट लाइक क्या, डॉट प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 है और बोथ आर नॉर्मल, है ना, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, so this is only inner product। सो एक चीज़ तो कंफर्म है कि यहाँ पर v2 जो है वो 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, थोड़ा ज्योमेट्रिकली देखिए, अगर v2 0 हो जाए, सो जो ये u2 है ये जो है इसी स्पेस पर, इसी वेक्टर स्पेस पर लाई करेगा, क्योंकि अगर v2 0 हो जाता है तो ये पार्ट जो है इसके ऊपर आ जाएगा। ओके, यानी क्या कि u2 और u1 लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। ओके, आप जो है u2 को u1 से जनरेट कर सकते हो। सो इफ v2 is 0 because if v2 is 0, so v2 अगर 0 हुआ तो u2 is what, u2 is equals to inner product of u2 with v1 divide by v1 का नॉर्म का स्क्वायर इंटू v1। ओके, सो u2 is what, u2 का इनर प्रोडक्ट v1 है क्या, u1 ही है, सो u2 विथ u1 इंटू u1 डिवाइड बाय u1 का नॉर्म का स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ, आप v2 को जनरेट कर पा रहे हो बाय u1। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये कहाँ के एलिमेंट है, ये एक बेसिस के एलिमेंट है और u1 और u2 क्या है, ये है लीनियरली इंडिपेंडेंट, और यहाँ पे आप बता रहे हो कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है क्योंकि u2 जो है वो u1 से जनरेट हो रहा है। सो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, इसका क्या मतलब है कि v2 जो है वो 0 नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब होगा कि जो v2 है वो हमेशा एक नॉन ज़ीरो वेक्टर होगा। ओके, अब हमें क्या चेक करना है कि क्या ये वाकई दोनों आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं है। ओके, सो मुझे v2 और v1 का जो है v2 और v1 का इनर प्रोडक्ट निकालना है। ओके, सो हमारा v2, नया v2 क्या निकला है, v2 इज व्हाट, u2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ u2 विथ v1 डिवाइड बाय v1 का नॉर्म का स्क्वायर इंटू v1 कॉमा विथ v1। ओके, अब इसे देखते हैं। सो विच इज इक्वल्स टू, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सो इट इज u2 का इनर प्रोडक्ट विथ v1। ओके, अब मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि हमने कई बार किया है ऑलरेडी, माइनस अब एक स्केलर है तो ये बाहर आएगा। सो u2 का इनर प्रोडक्ट विथ v1 डिवाइड बाय v1 का नॉर्म का स्क्वायर। ओके, और अंदर क्या बचेगा, v1 का इनर प्रोडक्ट विथ v1, राइट। सो विच इज इक्वल्स टू u2 का इनर प्रोडक्ट विथ v1 माइनस u2 का इनर प्रोडक्ट विथ v1 डिवाइड बाय v1 का नॉर्म का स्क्वायर, और ये भी क्या है, इंटू v1 का नॉर्म